morning, dear students. I hope you are doing absolutely fine. Today, we will cover our next part of the first chapter of class 10th Geography, Resource and Development. And the today's topic is resource sustainable development. So, let's move into the topic. What is sustainable development or what is sustainable economical development? This question is very much important as the from the point of view of CBSE. Many times this question raised in your board examination question paper. Okay, so let's discuss about the sustainable development. The development which should not damage the environment and at the same time take care of the need of the future generation is called sustainable development. Sustainable development is a development in which we develop ourselves in keeping views of the future generation. जब हम अपना खुद का विकास करते हैं और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचे, तो उसको हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर. इफ यू गेटिंग ओनली हाफ ऑफ, अगर आपको प्यास कम लगे तो आप हाफ ग्लास की पानी भरिए और उसको पीजिए. ऐसा नहीं कि आप फुल ग्लास पानी भर रहे हो, आधा ग्लास पी के आधा आप थ्रो कर रहे हो, फेंक रहे हो, तो आप वाटर का यूज वेस्ट कर रहे हो. अगर हम हाफ ही पिएंगे और हाफ बचाएंगे तो मे बी कोई और आके उस पानी को पी सकता है, मे बी किसी और के लिए पानी बच सकता है. सो इन दिस प्रोसेस हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में करते हैं, अपना डेवलपमेंट करते हैं, अपनी सेटिस्फैक्शन पूरी करते हैं, अपनी नीड्स को पूरी करते हैं, अपने वांट्स को पूरी करते हैं इन कीपिंग व्यूज ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, ताकि साथ के साथ हम फ्यूचर जनरेशन का भी खास ध्यान रखते हैं. तो दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड why sustainable development is important? Sustainable development is important because resources are in limited quantity. First of all, कि resource बहुत limited quantity में हम एक बार यूज करेंगे, एक बार यूटिलाइज करेंगे, they are finishing. Non-renewable resources दोबारा regenerate होने में millions of years. Second है environment pollution has been major threat to the survival of human beings. जितना ज्यादा हम रिसोर्स को यूज करेंगे उतना ज्यादा एनवायरमेंटल थ्रेटन होगा, उतना ज्यादा लैंड डिग्रेडेशन होगा, उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा ओजोन लेयर डिप्लीट होगा और ये सारा हमारे लिए एक थ्रेटन होगा. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट, द व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग. What do you mean by resource planning? What do you mean by planning? When we plan for something, जब हम किसी चीज के लिए प्लान करते हैं, it's called planning. तो what do you mean by resource planning? Resource planning is a technique or skill of proper utilization of resource. I can say resource planning is a planning of use of resource in an judiciary manner or in an proper manner. संसाधन नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम संसाधन का बहुत ही क्रिटिकली, बहुत ही एफिशिएंटली, बड़े न्यायपूर्वक तरीके से हम उसका यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं, ताकि हम अपना इस्तेमाल तो कर ही सके और फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखें. सेम एज sustainable development. Okay, the stages of resource planning. First of all, identification and listening to the resource. हमें सबसे पहले identify करना है कि resource are allocated in which area. Second, planning and exploitation. इसके बाद हमें plan करना है कि how much resource we should use and how the technology, what are the skills, what are the capitals we have to use to utilize that resources. Next, importance of resource planning. Why there is a necessity of resource planning? Of course, is it necessary to maintain the balanced development program in the India? And why? अब इंडिया में आपको ऐसा क्यों लगता है कि रिसोर्स प्लानिंग होना चाहिए और क्यों? Because you know India is a vast country. India is a very vast country. In somewhere there is a hill station, in somewhere there is a plain, in somewhere it is a coastal plain, somewhere it's a desert. So resources are allocated in different areas, different regions. So it is very much important to maintain and to balance the resource. So that's why we need a resource planning. Some region of India is rich in certain resources and poor in some other resources. For example, let's take a quick example of India. Just wait a minute, beta. Like this is India. Some resources are in certain place. For example, Rajasthan is poor in water resources but rich in solar energy. अब राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर कहते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और यहाँ पर सूरज की रोशनी एकदम सीधी पड़ती है, तो यहाँ पर
सोलर एनर्जी की बहुत मात्रा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर बाकी रिसोर्स नहीं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर कैपिटल नहीं है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, यहाँ पर स्किल नहीं है और यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज नहीं है. Some regions are sufficient while other regions have very poor important resources. For example, if we take the Madhya Pradesh, Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, where they are rich in mineral resources, as I said in yesterday's class. Mineral resources, but they are lacking food resources, like they don't have wheat production, they don't have other food grains, so they are depending to in Punjab and Haryana. उनको पंजाब और हरियाणा पर डिपेंड रहना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर बाकी जो रिसोर्स हैं वो नहीं है. That is why it is very much important to resource planning. Other points of wastage of resource can be avoided by planning. अगर हम प्लानिंग करेंगे तो शायद रिसोर्स का वेस्ट ना हो, environment pollution can be reduced. हम इको फ्रेंडली सिस्टम से अगर काम करेंगे तो शायद environmental फ्रेंडली भी हो सकता है. नेक्स्ट, रिसोर्स कंजर्वेशन. ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन? प्लान यूज ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड एंड स्टोर अ पार्ट ऑफ द फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. रिसोर्स कंजर्वेशन इज समथिंग इन व्हिच वी यूज रिसोर्स एंड वी यूज रिसोर्स इन अ प्लान्ड मैटर एंड we conserve resource for our future generations. Is it necessary to conserve resource and why? Yes, it is very much important to conserve our resource because the resources are in same as I said, it is in a limited quantity and it takes millions of years to regenerate and we need to focus on our future generation too. हमें अपने future generation का भी ध्यान रखना है, इसीलिए it is very much important that we have to use the resource in a proper manner. Next, as Gandhiji concerned about the resource conservation, according to Gandhiji, there is enough for nobody's needs and not for anybody's greeds. मतलब रिसोर्स जो वो ये हमारे जरूरतों को पूरा करता है, हमारी लालच को पूरा नहीं करता है. ग्रीड मींस हमें लालची नहीं होना है, हमें रिसोर्स को उतना ही यूज करना है जितना हमें जरूरत है. ठीक है. ग्रीड एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड द एक्सप्लॉइटेड नेचर्स ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी आर द रूट्स कॉज फॉर द रिसोर्स डिप्लीशन. जो लालची और जो सेल्फिश जो लोग होते हैं वही रिसोर्स डिप्लीशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. तो हमें कभी भी ग्रीडी पीपल नहीं बनना है, कभी भी हमें सेल्फिश पीपल नहीं बनना है. हमें बी ऑलवेज डिवोटेड टू आवर सोसाइटी, हमें हमेशा अपने सोसाइटी के लिए डिवोटेड रहना है. हमें हमेशा वी हैव टू गिव समथिंग टू आवर सोसाइटी, हमें हमेशा अपने सोसाइटी को कुछ देना है. टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ अ कंट्री, टू be a good person of a community, you have to give something in for your country and something to your society, and all this will be created you in a school. और ये सारी चीजें हम आपको स्कूल में सिखाते हैं. तो इसीलिए बेटा this is very much important that you have to be a good citizen for our nation. So moving to the next topic, land as a resources. Now we are moving in the second topic of the chapter, land as a resources. Land is very much important and this is the main resources of other resources. जब तक land नहीं होगा तब तक कोई भी resource नहीं होगा. आप mineral based resource कह लो, आप forest based resource कह लो, आप human resource कह लो, सारा land पे ही काम करता है. Why land resources are important? Why land resources are important? As I said, human beings can survive only in land. All the economic activities are performed on land. जितने भी जो हमारे आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो लैंड पे होते हैं. सॉइल कवर जो अपर मोस्ट एरिया है उसमें सारा सॉइल होता है. जो सॉइल इज एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑफ ऑल द बैक्टीरियाज, प्लांट्स, एलिमेंट्स, फ्लोरा एंड फौना. सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. रोड, रेलवेज, बिल्डिंग्स, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑल आर इन सॉइल. तो दैट्स व्हाई लैंड इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज. मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, land under different relief features in India. If we classify the land, how is it in India? Plain area, total India में plain area है 43% and mountain 30% and plateau 27%. These are the classification of land in India. 43% of the land area in plain in India. 43% of the land area is plain and they are found in this region. Just wait a minute, beta. Okay. These region in which there is a river bed,
they are all plain region. India has 43% of plain region which are occupied by alluvial soils. 30% is mountain. From northeast to northeast, these are all mountain areas, and 27% of the land is covered by plateau, in which include Chota Nagpur plateau, Malwa plateau, Meghalaya plateau, and Deccan plateau. So plateau cover only 27%. Next, moving to the next topic, land use pattern in India. How we are using land? As we studied in class 9, India has 3.28 billion square kilometer area, which is nearby 2.4% of टोटल लैंड ऑफ द अर्थ का जो टोटल लैंड का जो अगर हम परसेंटेज में देखें तो 2.4% लैंड जो है वो इंडिया कैरी करता है. 43% ऑफ द लैंड आर इन नॉट नेट सोन एरिया, मतलब कि 43% जो एरिया है लैंड है उसमें हम आउट ऑफ दिस 43% लैंड में हम एग्रीकल्चर जो भी एक्टिविटीज करते हैं, परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज, एंड 0.57% are occupied by the forest. 6% of land is wasteland which we are not using, and 7.9% of land is non-agriculture purpose. हम वो जमीन है जिसमें हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करते, but they are still enhancing. 3.45% of the land is पेस्टोल लैंड, जहाँ पर हम करते हैं जानवरों को चलाने के लिए, या पेस्टोल जो हमारे कैटल्स जो हमारे लिविंग स्टॉक्स हैं उनको चलाने के लिए करते हैं. 1.10% ऑफ द लैंड इज ट्रीज ऑक्युपाइड, जो हमारे 1.10% जो लैंड है वो ट्री ऑक्युपाइड है. 4.41 ऑफ द लैंड आर कल्टीवेबल वेस्टलैंड, ये जमीन वो जमीन जिसमें हम खेती कर सकते हैं लेकिन हम उसमें खेती नहीं करें. अब आप पूछोगे सर ये ट्री ऑक्युपाइड लैंड कौन सा होता है? सपोज यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मलोर टू डावाली, द रोड, जिन रोडों के साइड पे जो प्लांट्स हैं, ये ट्रीज लगे, ये सारा ये जो जमीन है ये इन पेड़ों ने घेर रखा है, तो इनको हम यूटिलाइज करते हैं. तो आप टोटल इंडिया में जो 1.10% जो लैंड है वो इसी लैंड से, इसी ट्रीज ने ऑक्युपाई कर रखा है. ठीक है ना, आपके घर के पास, आपके जो भी स्कूल के बिल्डिंग के पास, वो सारा जो है हम उसको इसमें यूटिलाइज करते हैं. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट बेटा? अंडरस्टूड माय पॉइंट? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. These are the pie diagram of the land distribution in India. Just go through the diagram. You will get it in your textbook, page number 63. Sorry, it's page number 7 or 8. Okay, moving to the next topic. Causes of land degradation. This is very important topic. Why land degradation is caused by human activities? What is the difference between human and natural factor affecting the land degradation? Large scale of soil caused by running water, large scale of soil erosion caused by the running water and wind. अब आप देखोगे जो वाटर का जो जब बहुत तेजी से हवा चलती है, जो बहुत तेजी से अगर बारिश या तूफान आता है तो वो क्या करता है अपने साथ मिट्टी को, सॉइल को उड़ा के ले जाती है. आपको शायद नहीं पता, राजस्थान का जो मिट्टी है आपको क्या है सिरसा तक पहुंचने लगा है और यहाँ पर दली तक उड़ने लगा. कैसे? ये जो हवाएं थी, हवा इसको चला के माइग्रेट करती है. सपोज जस्ट वेट अ मिनट बेटा. Some sand dunes are, जैसे ये रेत का टेला यहाँ पर हवा आई उसको इसको उड़ा के यहाँ पर शिफ्ट करा, फिर यहाँ से ऐसे शिफ्ट करा, ऐसे करके ये मूविंग करती है. दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. Soil move from one place to another place is called soil erosion due to air, water, जो हवा या नदी के साथ. अगर कोई रिवर चलती है, वो रिवर क्या करेगी अपने साथ मिट्टी को काटना शुरू करेगी, साइड से उसको काट के लेके जाके कहीं पर जो प्लेन एरिया वहां पर छोड़ देगी. आपका नॉर्दर्न प्लेन जितना भी है इस तरह ये एल्यूमिनियम सॉइल का डिपॉजिट और ये डिपॉजिट आर gathered by गंगा रिवर, यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द माइनिंग सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट. अब डंपिंग जो भी कचरा माइनिंग से, जो माइनिंग एरिया है जहां पर कोल की माइनिंग होती है, अदर मिनरल रिसोर्स की माइनिंग होती है, वहां का जो वेस्ट मटेरियल को कहीं पर डालना वो भी सॉइल इरोजन का काज करता है. नेक्स्ट है ओवर इरिगेशन लीड टू इंक्रीज द सैलिनिटी एंड अलाइनमेंट इन सॉइल. ओवर इरिगेशन पंजाब हरियाणा में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पानी जो खेतों में जो पानी लगाया था उसके साथ बहुत सारा यूरिया फर्टिलाइजर यूज किया जाता है जो वहां की मिट्टी की जो करते उर्वर शक्ति है, जो फर्टिलिटी क्वालिटी उसको गिरा देती है और मिट्टी में सैलिनिटी, नमक की मात्रा को बढ़ाते हैं जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है. नेक्स्ट है ओवर ग्राजिंग. एनिमल्स का ओवर ग्राजिंग कराना भी क्या कहते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ गॉट, अगर हम बकरी का एग्जांपल है, बकरी जब भी घास को खाती है वो जड़ से उखाड़ के खा जाती है, तो जब वो जड़ से उखाड़ देगी तो घास दोबारा होगा ही नहीं. दैट्स व्हाई हमें ऐसे एनिमल्स पे क्या कहते हैं
रोक लगाना चाहिए ग्रासिंग कराने से। इंस्टेंट ऑफ उनको ग्रासिंग कराने से अच्छा उसको ग्रास पहले से काट के अगर दे देंगे तो शायद वो ग्रास दोबारा 2 या 4 दिन में ग्रोथ कर जाएगी, इसलिए हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्री यूनिट्स पोल्यूट द लैंड। अनदर एग्जांपल, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है वो सीधा कलर रिवर में फ्लो करता है, जिस कारण हमारा रिवर वाटर भी फ्लो होता है। दीज आर सर्टेन पॉइंट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, how do industry cause land degradation? As I said, dumping of the waste material of the industry, the dumping of the waste water, the impure water to the ocean belts or in a river is caused the pollution to the environment and to the land degradation. Moving to the next topic, suggest measure to conserve land resources. आपको पता है हमें जब soil resource इन सबको खत्म करने के लिए हमें कौन कौन से तकनीक या what are the technical we have to use? First है soil erosion can be prevented by ending of deforestation. हमें सबसे पहले लकड़ी की कटाई, हमें पेड़ की कटाई कम करनी चाहिए। We have to adopt afforestation. Deforestation means cutting of tree. Afforestation is planting a tree. ठीक है, तो हमें afforestation करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। सेकंड है preparing shelter beds. हमें जब भी आपने देखा होगा खेत के साइड में आप लोग जैसे ये आपका पिच ऑफ करते लैंड है जहाँ पर आप करते फार्मिंग एक्टिविटी करते हैं, आप साइड से शेल्टर बेड बनाते हो, ऐसे बनाते हैं। इसीलिए बनाते हैं इसको, इससे आपका बॉर्डरिंग बनता है कि इसके आगे वाली जमीन मेरी नहीं है। और दूसरा ये यहाँ की मिट्टी को यहाँ पर उड़ने देते, यहाँ की मिट्टी को यहाँ देते। अगर बारिश की आ रही है तो बारिश तो पानी से अगर बह रहा है तो वो मिट्टी को आगे फ्लो नहीं होता। दे आर वेरी मच नीडेड टू शेल्टर बेड। आपने और भी कुछ जगह पर देखा होगा इन शेल्टर बेड से छोटे छोटे प्लांट्स भी लगा दिया जाता है। प्लांट्स इसको और ज्यादा स्टोर करते हैं, मिट्टी को ट्रैवल करने से रोकता है। तो शेल्टर बेड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। माइनिंग एक्टिविटी शुड बी कंट्रोल। जितने भी माइनिंग एक्टिविटी है, जो भी हम खनन करें, जो भी हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करें, उस पर हमें रोक लगानी चाहिए, पाबंदी लगा देनी चाहिए, जुडिशियली तरीके से हमें उसे यूटिलाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी केमिकली ट्रीटेड एंड रिमूव टू द हार्मफुल सब्सटेंस। हमें इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा प्रोसेस करके उसमें से जो हार्मफुल चीजें उसको अलग कर देनी चाहिए, उसके बाद उसका जो भी ट्रीटमेंट करना है वो हमें फर्दर करना चाहिए। एंड अर्बन स्टेट, अर्बन वेस्ट जो शहरी क्षेत्र में जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, उन सब चीजों का हमें बहुत प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना चाहिए और उसके बाद ही उसको यूटिलाइज करना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, degraded land in India and how many lands are degraded in India? 130 million hectares of land is degraded in India. 56% of its water eroded area, 28% of the forest is degraded area. आप देखो कि इतना सारा जमीन जो हमारा वेस्ट हो रहा है, इतने पानी का जो रिसोर्स है वो हमारा खराब हो रहा है। ठीक है, so it is just take a screenshot of this topic. We will moving to the next topic right now. Soil. Another important topic is soil. This topic we will cover in our next part. So far so good. Take care. God bless you all. बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी है फर्दर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो